بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد. کل بات ایک عرض کی تھی انتخاب سلسلے میں. ایک ہوتا ہے شریعت کا انتخاب، ایک ہے نفس کا انتخاب. آج امت مسلمہ نفس کا انتخاب کر رہی ہے، شریعت سے دور چلی گئی، دنیا سے قریب آ گئی. یہ نفس کا انتخاب ہے. اس قدر انہماک ہے دنیا میں، اس کو آخر فکر ہی نہیں. یہ خانقاہی نظام کی فکر پیدا کرتے ہیں. شاید توجہ ذرا توجہ کو تمہیں یہ رہنا نہیں ہے، تم عارضی طور پر آئے ہو، بلاوا جو چلے جاؤ گے. اب جاؤ گے تو کیا لے کے جاؤ گے، یہ سوچ رہے بس. اعمال صالح کی توفیق اللہ تعالیٰ ہی دیں، بشر تم سے مانگو. ہم امت مانگتی نہیں ہے، وہی بے روی چلی آ رہی ہے، منمانی کر رہی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ ڈرا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. تمہارے کام جو ہے اللہ تعالیٰ کون ہے؟ سمیع بصیر علیم و خبیر ہے، ہر چیز سے واقف ہے وہ. یہ استدار ہو جائے پورے طور پہ تو کبھی کوئی انسان گناہ نہیں کرے گا، پھر وہ ڈرے گا. اس کو یاد کر لو، کیسے اپنے بالکل رچ بسا لو، بسا لو. اللہ تعالیٰ سمیع بصیر علیم و خبیر ہے. ہمارے ایک عزیز جدے میں ہے ماشاءاللہ، ان کو اتنا اس پہ وہ ہو گیا ہے، کہتے ہیں میں دفتر میں کام کرتا رہتا ہوں اور ذرا بے توجہ ذرا سے ہوئی یہ استدار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سمیع بصیر علیم و خبیر. ہم پھر الرٹ ہو جاتے ہیں. یہ ہے اس کو خود دل میں رکھا، اللہ تعالیٰ سمیع بصیر علیم و خبیر. کام تو کرو، ہر چیز جتنا استدار ہوگا اس کی. اب تو دنیا میں مثال موجود ہے، یہ کیمرے لگائے گئے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے، بس فون کیچ کر لیں گے وہ. اس سے لوگ ڈرتے ہیں. کیمرہ ان کے پاس اور دو کیمرے مین بیٹھے ہمارے دائیں بائیں، کرامن کاتبین، پھر تو سب ضبط کر رہے ہیں. ان سے کوئی نہیں ڈرتا. یہ تو حق بات ہی لکھتے ہیں، باطل لکھتے بھی نہیں. لائیے کلام کو تو لوگ سمجھتے ہو وہاں ضبط تو ہو جائے گا. اسی لیے جب شروع ایجاد ہوا تھا یہ آپ کے یہ آلات ایجاد ہوتے ہیں، یہ سائنس کی دین ہے، بڑی دین، اچھی دین ہے. لیکن ہم نے اس کو غلط استعمال کیا. اس غلط استعمال سے ہمارے گناہوں کے شروع ہونے لگا. جو قاعدے اس نے متعین کیے ہیں اس پر اگر عمل کرے تو پھر گمراہ نہیں ہوں گے، گناہ بھی نہیں کریں گے. ایک اعلیٰ عمدہ چیز تھی، اس کا گھٹیا انہیں میں سے ویب سائٹ ہے، موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، ٹیلی ویژن ہے. بہت عمدہ چیزیں ہیں. یہ ہم نے غلطی کی، اس میں استعمال کی غلطی کی، قوم کی قوم گمراہ ہو گئی. بے حیائی عام ہو رہی ہے. کیا بچہ، کیا بچی، کیا جوان، کیا بوڑھا، ایسا اس میں مبتلا ہو گئے. وجہ کہ گھر میں دین کا چرچا نہیں ہے، دین کی کوئی بات سنائی نہیں آتی. جب دین میں چرچا نہیں ہوگا تو بچے بات سن کے آتے وہ اس کو وہی رٹتے رہتے ہیں. یہ گالی گھر میں نہیں سکھائی جاتی. بچے بات سیکھ کے آتے وہ بولتے رہتے ہیں. تربیت کا اثر ہوتا ہے اصل میں. اسی لیے بیوی کا انتخاب کرو، وہ ایسی ہو جو دیندار ہو. آج انتخاب پہ ڈگری کا انتخاب ہو رہا ہے کہ میری ایسی ہو، اہل ایسا کیا پڑھی ہے. اس طریقے سے ان کی عادت عام ہو رہی ہے. عام طور پہ اچھی خاصے گھر میں بچیاں بیچاری بہت سی صالح بچیاں ہیں، سب دین نہ لے کے دین نہ لے، اس کو ترجیح نہیں دیتا. حالانکہ آپ نے خود فرمایا دین کو ترجیح دینا، اور دین ترجیح دینا ہے. پوری اولاد ان کے کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. انہیں میں سے خواجہ اولیاء کی والدہ محترمہ تھیں. یتیم تھے، ان کے کوئی معلوم کوئی بزرگ آئی تو ان کی خدمت لے آتی ہے، ان کا سر ہاتھ پھیراتے ہیں، اتنے دعا فرما دیجیے. یہ ذوق و شوق تھا ان کا. جتنے والے اکابر نے سب باقاعدہ ترجیح تھی ان کو. اور جہاں جہاں ترجیح دی ان کی لڑکی کام ناکام کبھی نہیں ہوئی. دین کو ترجیح دی. انہیں میں سے ہمارے شیخ نور گیا، امیاں صاحبہ تھیں،
डॉक्टर की बेटी, भाई डॉक्टर, पूरा खानदान डॉक्टर उनका, लखनऊ परवरिश उनकी हुई और मेयारी जगह रहते थे। ऐसा वाला तुम्हारे हो क्या है, आलिम थे ये, उन्होंने क्या बोले उनको, उन्होंने तभी वसल बिलग्रामी बीच में थे, उन्होंने निकाह कराया हजरत वाला का, शुरू थे। लेकिन अम्मियाँ बहुत खुश थी, फरमाती थी कि पहले मैं समझती थी कि मुझे अर्श से फर्श में फेंक दिया गया, फिर जब हालात बेहतरी देखते गए तो मैं शुक्र अदा कि मेरी बहनें जो हैं उसे कहीं कम है, हम तो अल्लाह ने बहुत शुक्र अदा। एक दीनदार घराने में शादी हुई और एक ऐसे बुजुर्ग शादी हो गई। आजकल चूंकि उलमा की तरबियत नहीं हो रही, उलमा के घराने में जो है वहाँ तो दिया उन्होंने, तरबियत नहीं की। ऐसे लोग खुखार होते हैं, कहीं भीख मार रहे हैं, कहीं गाली दे रहे हैं, कहीं छापा लगा रहे हैं, अक्सर हो रही आते हैं खबरें। हाफिज भी, आलिम भी है, सब कुछ है, ये अलग मर्ज है, क्योंकि तस्कीर नफ्स नहीं किया उन्होंने। और जो आलिम तरबियत याफ्ता होगा वो तो इसलिए करीब सुन लेगा। इसीलिए आपने फरमाया कि जिस औरत ने अपने शौहर के तलख बर्दाश्त कर लिया उसको सैयदा जो है फ़िरौन अहलियत आसिया के तौर मिलेगा। इसे दोनों के जिस मर्द ने अपने बीवी की तलख बर्दाश्त कर लिया उसको अय्यूब अलैहिस्सलाम जैसा मिलेगा। फिर ये दीन को देखो तुम पहले, आज दीन को बिल्कुल नहीं देखते। अब से पहले दो चीज़ देखी जाती थी, एक दीनदार, एक नस्ब, खास तौर से कि मैं हड्डी देखती हूँ, हड्डी के खफू है कैसा है, हमारे घराने है या नहीं है, इसलिए ठीक है शैतान दी तुमको, और धीरे धीरे जब बढ़ोगे तुम आगे बढ़ोगे, लेकिन दीन को तरजीह दो, दीन को तरजीह दोगे तो तुम कामयाब हो जाओ। बच्चे भी जब होंगे उससे तरबियत अच्छी करेगी। हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि जब मेरा दूध छोड़ा गया था इतने पाव पारे हावी हो चुके थे, बच्ची जो है खिलाने वाली वो कुरान पाक सिखाती थी, याद कर लेते थे। आज हम बच्चों को सुलाते लोरी देके ये है तो सुन्नत तरीका जो है हमारे अंदर जरूरत हो रहा है। पर्दे कोई एहतमाम नहीं, हया कोई एहतमाम नहीं, पढ़ा ले किसने मना किया, किए उसके बाद देखो तुम पढ़ने लगा इंसान मानो है वहाँ मर्दान क्या लड़का और लड़की, कोई तालीम को ज़रा बिल्कुल नहीं है। लेकिन आजकल सिलेबस के अंदर वो चीज़ें जो इस्लाम के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं वो दाखिल की गई, चूँकि उनके हुकूमत उन्हीं के दौर है, सिलेबस के अंदर बहुत सी ऐसी दाखिल कर दी गई वो तकरीब कह जाते हैं। वो पहले लोग कहते हैं प्रोटेस्ट करते थे, वो करते थे, बाद चीज़ों पर हरमान आलिम आसान तो कि हमारे ऐसा नहीं हो सकता, हम बच्चों हटा लेंगे। एक वार्निंग दी थी, लोग सब थरा गए, काम गए। ये कहने वाले भी तो ऐसा हो, घर का माहौल दीन बनाओ, हया सिखाओ, बच्चों को पर्दे में रखो, उनके मसाइल बयान करो, ये है दीन। जाहिर है कि थोड़ी जिंदगी लेके आए इंसान, ये तुम कब तक जिंदा रहोगे। अभी जवानी बाल नहीं निकले बिल्कुल, और एकदम फिर दाढ़ी भी सफ़ेद होकर ख़त्म हो गया इंसान। हर चीज़ का एक उसूल होता है। शरीयत ने ख़ास तौर से फरमाया देखो तुम सबसे अहमियत देना, तरजीह देना दीन को। हमारी नमाज सुन्नत माफ़ी सिखाओ पहले बच्चों को, कैसे नमाज पढ़ोगे। कल वाक़या देख रहा था, सैयदना हसन रज़ी अल्लाह तआला हुसैन दोनों भाई थे, दरिया दरिया करीब। एक शख्स आया मुअम्मर, उसने वज़ू किया, नमाज पढ़ी, दोनों गलत वज़ू किया और गलत नमाज पढ़ी। इसको कहते हैं हिकमत अमली, घर के तब इसको कहते हैं। जब फारिग हुआ तो उन्होंने गुजारिश की, हज़रत आप मुअम्मर हैं, आपसे वसीदा है, तजर्बेकार हैं, हम दो छोटे हैं, इसलिए कि मैं वज़ू करूँ आप मुझे देखें, कोई गलत तो बता दीजिएगा। उन्होंने वज़ू किया, सुन्नत मुवाफ़िक़, नमाज पढ़ी, सुन्नत मुवाफ़िक़। बड़े में शर्मिंदा हो गए, कहीं नहीं बैठे तो बिल्कुल ठीक किया, मेरी गलती, ये हिकमत, ये घर की तरबियत। आज हम लोग तबलीग करते हैं लठमार, मौका महल को देखो। इसीलिए मुबल्लिग के लिए ज़रूरी है मर्दों शनासी, मौका शनासी, हर शनासी।
یہ ضروری اس کے ورنہ اس کی مبلغ نہیں ہوا. انہوں نے کر کے دیا. انہیں میں سے واقع تھا مولانا قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا. ایک ایسا شخص تھے ان کے پاجامہ نیچا تھا. انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیے ہمارا پاجامہ نیچا تو نہیں ہے. فکر کرے گا کہ نہیں بھائی تمہارا پاجامہ اونچا ہے, میرا ہی پاجامہ نیچا ہے. یہ کیا تم نے ٹکن ڈھکل دیا ہے. یہ ہے حکمت عملی اس کو کہتے ہیں. جو تربیت ہو جائے گی, کوئی کلام کرو کبھی انتشار پیدا ہی نہیں ہوگا. انتشار پیدا ہوتا ہے عدم واقفیت سے, نا واقف ہے, یا اس کی توجہ در نہیں گئی, یا صبح شام تک کے اعمال کو دیکھو میرا انتخاب کدھر جا رہا ہے. شریعت کیا کہتی ہے؟ ہمارا انتخاب دوسرا ہے. شادی میں ہم انتخاب دیتے ہائی فائی ہونا چاہیے, اور ہم لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی اتنا ہو تو جو گزر والے چھوڑتے ہیں کافی. مولانا تھانی فرماتے ہیں, دو بڑے پیارے جملے ہیں. انتخاب یہ دیکھو, اگر لڑکا دیندار نہیں ہے شادی کر دو, دیندار بن جائے گا, لیکن دین بیدار نہ ہو. اگر دین بیدار ہے اس کی اصلاح نہیں ہوگی. یہ تم اس کو دیکھو. ایک صاحب آئے تھے بڑے مسقط سے, ان کی لڑکی پردے میں سب کچھ سمجھ جاتا ہوں تو کہیں یہ خامی دو گناتے گئے. انہوں نے کہا آپ کے پیر تھے حاجی مقصد عبداللہ پھولپوری, اب دادا پیر رسول اللہ. وہاں تھانی کے محفوظ ہے کہ انتخاب یہ دیکھو, لڑکا دیندار اگر نہیں ہے تو ہو جائے گا, لیکن دین بیدار نہ ہو. بہت خوش ہوئے, یہ دیکھ لو. فی الحال اس کی حیات اچھی نہیں ہے, بن جائے گی, کوئی مشکل نہیں. گھر میں ذکر ماحول بناؤ. خواتین کو بھی بچوں کو بھی جمع کرو. جیسے ہم لوگ فکر ہوتے ہیں بھائی ناشتہ تیار کرو, بچوں کو بھیجا فکر ہوتی ہے. والدین کو ہر چیز تیار رکھتے ہیں, فراوت بس آئے گی اس کو لے جائے گی. ایسے ہی ان کو اڈاپٹ کر دو. دیکھو بچے پہلے نماز پڑھ لو, نماز کے بعد پھر جو کچھ ہو یہ کبھی بلاؤ جمع کر لو, پاس ذکر کر لو, کلمہ طیبہ پڑھ لیا کرو. اس سے دھیرے عادت بن جاتی ہے. بچوں کے اندر عادت جو بن جائے گی وہ بچے وہی کارگر بھی ہوتے ہیں. یہ ہمارا پوتا ہے حمزہ میاں, ٹیکسی پہ بیٹھے ڈرائیور گانا سن رہا تھا, بہت چھوٹا تھا. اس نے کہا کہ آپ گانا سنتے ہیں, اللہ میں ناراض ہو جائیں گے. چھوٹا بچہ 4 سال کا, گھر کے ماحول. اسی طریقے سے بچوں کو عادت ڈالو کہ سلام کریں. سب آج بڑے سلام نہیں کرتے, بچے کیا کریں گے؟ یہ بات داخل گھر میں سلام کرو, ہمیشہ سلام پہ عمل کرو, کامیاب ہو جاؤ گے. چاہے 10 بار جانا ہو السلام علیکم. یہ تو اس سے ظاہر ہے کہ اس سنت پہ عمل کرو گے, کام بھی بنے گا, ثواب ملے گا. ہمارے گھر میں جب جاتے ہیں 2 وقت, ظہر بعد اور عشاء بعد اندر, تو چھوٹے بچے ہمارے پوتے پوتیاں آتی ہیں, سب سے پہلے تو داخل ضروریات ہوگی. ان کو پہلے سلام کریں گے پورا, پھر نام ظاہر کریں گے, پھر علاج جائیں گے. ایسے کبھی نہیں بچیاں باہر کھڑی, ایسی نوازیاں بھی. ہم سوال کرتے ہیں, ایک مہم جملہ ہے, کئے بجے یعنی کئے بھی اٹھی؟ اس وقت نماز آپ پڑھ لی, قضا ہو گئی. کوئی چھوٹی بچی ہے لیکن پڑھ لو بس, قضا صحیح. یہ پوچھنا چاہیے. گھر میں تربیت ہوتی ہے, اسی لیے کہا کہ والدین صالح ہیں, اولاد جو صالح بنے گی. ایک ڈاکٹر صاحب نے بہت بچوں بارے اپنے فرمایا تمہاری صلاح کس طرح ہوگی. ان سے آتے میرا بچہ آج ایک دم اوپر پہنچ جائے, تمہاری صلاح کس طرح ہوگی. خاموش, حکمت عملی سو کہتے ہیں. پہلے تمہیں جو ہے استقامت, اس پہ جو چیز دیکھو گھر میں ماحول بنا لو. آج قوم ملعون قوم پہ جاری, یہود و نصارہ پہ, کیا عورت کیا مرد کبھی کامیاب نہیں ہو گئے. اس لیے اس کا پتہ چلے گا آخرت میں جا کے. یہاں تم نے کما بھی لیا, وہاں تو پچھتانا پڑے گا. اور یہی لوگ پچھتاتے ہیں. اولاد بھی ان کی نافرمان ہوتی ہے. ایسے کہ اولاد فرمان بالکل نہیں ہوتی, نافرمان ہوتی ہے. کبھی کبھی اصلاح بھی کرتا ہے ان الفاظ سے. میرا واقعہ ہے سن 65 میں تشریف شاہ وسیع اللہ صاحب نور اللہ مرقد ہو, تو میں تھا, والد صاحب آ گئے تھے, تو حضرت فرمایا کہ حضرت ان میں استقامت نہیں ہے.
हथफोद मुतवज्जे हो गया, तुम्हें इस्तिकामत है, और एकदम खामोश। नहीं जुमला था मेरे बारे में, इनमें इस्तिकामत नहीं है। तो हज़रत ने फरमाया कि तुम्हें इस्तिकामत है। ये भी होती है इस्लाह की। आज हमारे अंदर इस्लाह न करते न कराते हैं। हज़रत ने फरमाया कि देखो जो शख्स इस्लाह की फिक्र लगाएगा कि मेरी इस्लाह हो जाए, उसका शुमार मुस्लिहीन होगा मैदान महशर में। यहाँ उसने अपनी इस्लाह की फिक्र की। आज हम इस्लाह जानते ही नहीं। असल मकसद जो था बैत होना फौत हो गया, ये लफाजी रह गई, मुस्ताहब को वाजिब बना दिया, कभी कामयाब नहीं हो गया। बैत होना मुस्ताहब वाजिब नहीं, इस्लाह वाजिब है। कौन कहता है? इसलिए कि ज़रूरी इस्लाह, वरना पकड़ ही जाओगे। तज़किया नफ्स फर्ज़ ऐन है। आज उम्मत इसे बिल्कुल गाफिल हो रही है। वो कहते हैं हमें क्या ज़रूरत है, सबको ज़रूरत पेश है। हम बाद में इतराफ़ करते हैं, पर फिर अल्लाह ने इतराफ़ किया कि वाकई मैंने गलती की। एक दौर होता है, हम हमी का दौर होता है, उस वक्त उसकी अना आ जाती है। इल्म की इसीलिए फरमाया गया, मुहिद्दीन अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने हिजाब अकबर है। ये कभी कभी ऐसा भी होता है, बहुत पे लोग इसमें अपने अना में आ गए थे, लेकिन जब तवज्जो हुई फजल रब्बी है और एतराफ़ किया, मुझसे गलती हो गई। यहाँ पर एक बहुत काबिल लायक फ़ायद थे मौलाना सईद अकबर वादी रहमतुल्लाह अलैह। और क्या ज़रूरत है, ये सूफी उनकी या तज़व्वुर क्या ज़रूरत है। उसके बाद फिर उन्होंने वालिद के उस्ताद भी थे, दोस्त भी थे, दोनों चीज़ें थी। मतलब तालीम पढ़ाया था उन्होंने दिल्ली में, कि अब ये तजर्बा हो गया बहुत ज़रूरी है। उन्होंने इतराफ़ किया मैं गलती पे था। तज़किया नफ्स बहुत ज़रूरी। वो कहते हैं जो किताबें मौजूद है क्या उसकी शेख से वाबस्ता होने के, तज़किया नफ्स तो हो जाएगा। हमने पढ़ ली बहुत चीज़ें, इल्म गलत हमको, बड़े काबिल अल्लामा थे वो, लेकिन एतराज़ किया उन्होंने। ऐसे अल्लाह वाले में लोग हैं, अपनी गलती उनको समझ आ जाएगी कि मैं गलती पर हूँ। उलमा में दो मर्ज पैदा हो गया आजकल अमूमी तौर पर, और अक्सर गालिब हो गई इस पर। एक तो उनके न ज़बान पर काबू न कलम पे काबू। ऐसे लोग सख्त खतरे में हैं। ऐसे नसीहत की उलमा के लिए ख़ास तौर से न कलम बहके न ज़बान बहके। और कितने लोग इब्तिला जाम हो रही है, वो खड़े खड़े आते हैं पास, कितना तुमको मिला, इतनी देर तुमने तिलावत की होती है, अल्लाह की याद किया होता है, दर्जात पहुँचते तुमने घटा दिया। लिखना कोई मुश्किल नहीं, तनकीद कोई मुश्किल नहीं। दारुल से अक्सर आते हैं जो लोग ज़िद में लोग लिखते हैं, अल्लाह बंदे अल्लाह खौफ करो, गलती निशानी करते, मौत में ये खराबी, उनमें ये खराबी, अपनी कमी देखो पहले। तनकीद करना कोई मुश्किल नहीं। यहाँ मर्ज हो रहा है उलमा में, ज़बान रह गई कलम रह गया। ऐसे लोग नाकाम रहते हैं। यहाँ पे तो कितने कर लो अपना लफाजी, वहाँ से पकड़ ले जाओगे। बहुत बड़े आलिम थे, अदीब अदब के बादशाह थे, ये मौलाना अब्दुल बारी दरियाबादी नवर रहमान खतूब। उन्होंने अपने शेर में अपनी अक्कासी की कि मैं क्या था अब क्या हूँ। पहले हाल बयान किया, ताज़ोर कभी खुदबीनी का करते कहते हम के सिवा, ये पहला शेर है। उस वक्त उनको आना थी, अदब के बादशाह थे। ताज़ोर कभी खुदबीनी का करते ही कहते हम के सिवा, फिर तशरीफ़ थाने मौत इस्लाह करे, फिर इस्लाह बाद अपनी अक्कासी के। अब तो जवाब पर कुछ भी नहीं है, रब्बी फर हम के सिवा। ये थे अल्लामा, इन्होंने बाकायदा आलिम बामल बने। इल्म बना सनत फ़रोख्त हो रहा है। मैं कासमी हूँ, मैं नदवी हूँ, मैं मज़ाहिब हूँ। एक बड़ा सनत बड़ा अमल नहीं रहा। सियासत कहीं पढ़ी जाती है, सिर्फ पढ़ने के लिए और करने के लिए, कोई पढ़ ले उसको। अमल है सिर्फ पढ़ा, अमल करोगे कामयाब हो जाओगे। आज हमारे अंदर इसकी बड़ी कमी हो रही है। इल्म तो है, अमल नहीं है। देखिए कौन मा सादिक़ीन में अमल नहीं है। पहले लोग खुद मुझसे फरमाना अरशद मंदी साहब दावा कहता हूँ कि पहले लोग जब दौरे में आते थे पूछते मैं अपनी इस्लाह किससे कराऊँ, उनको एक खूबी होती थी कि आपसे करा लो। अब तो मैं तो फारिग हो गया, भाई क्या ज़रूरत है, मैं तो आलिम हो गया।
इसीलिए कौम पे इंसाफ है, उलमा पे भी अजाब ये भी याद रखो। आप बात नहीं कहते, ये भी अजाब लाइए, सख्त खतरे में है। ये दो चीज़ कंट्रोल कर लो, काबू में लो, न कलम बहके न जबान बहके। इतने कज़िए और पेश आ रहे हैं, जो चाहे कह दिया, जिन पे चाहे तनकीद कर दी। अल्लाह से डरो, तनकीद करो अपने नफ्स पर, अपने आप पे। दूसरे को तनकीद करते हो, अपने अमान नमस्या करते हो। तो एक तो इंतखाब ये मैंने अर्ज किया कि दीन के इंतखाब, शहद पे इंतखाब करोगे कामयाब हो जाओगे। आज हम लोग दूसरे से दूसरी हाथ बढ़ाते हैं, जो दीन बेजार हैं उनसे हाथ बढ़ा रहे हैं, और दीनदार कोई ताल्लुक नहीं। नाकामी के दरवाजे हमने खुद खोल रखे हैं। खाने पीने में एहतियात करो, जो काम करो खैर के अंदर करो, और जो भी करो सब। पहले ये था कि आप एक वाक़या इस पर लिखा है, आपने एक साहबी अहद दिया था कि देखो ये करना अच्छी बात है। वाक़या बाज़ वक्त होते हैं क्या, बेवकूफ़ आजकल बेवकूफ़ बना इतनी चीज़ इतने भेज दी, वाक़या में सुना हूँ। अल्लाह ईफा वादा खैर खाई सिलसिले में एक हदीस पाक में कि जिसका मफ़हूम ये कि हज़रत एक साहबी ने, मैंने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्तख़त पर इस बात पर बैत की कि नमाज पढ़ता रहूँगा, ज़कात देता रहूँगा, हर मुसलमान के साथ खैरख्वाही करता रहूँगा। ये 3 लफ्ज़ थे। इसकी शरह में इमाम नबवी सनद एक वाक़या ज़िक्र किया, जिससे मालूम होता है कि हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु के दिल में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इताअत का जज्बा कूट कर भरा हुआ था। उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो वादा किया था उसे दिल ने बहा। वाक़या मशहूर है। एक दवाई साहबी ने अपने ग़ुलाम को एक घोड़ा खरीद कर लाने को हुक्म दिया। ग़ुलाम 300 दिरहम में घोड़ा खरीद लाया, साथ ही रकम दिलाने के लिए घोड़े के मालिक को भी लेता आया। जब साहबी को मुकर्रर शुदा रकम बताई गई और घोड़ा पेश किया गया, आपने अंदाज़ से कहा ये घोड़े की कीमत 300 दिरहम से कहीं ज़्यादा है। आपने घोड़े के मालिक से कहा कि आपको ये घोड़ा 300 दिरहम से ज़्यादा है कीमत का है, कि आप 400 दिरहम में मफरूज़ करेंगे। उसे जवाब दिया, अरे अब्दुल्ला, जैसे आप ऐसी चाहे। फिर उन्होंने फरमाया कि आपकी घोड़े की कीमत 400 दिरहम से भी ज़्यादा है, क्या आप 500 दिरहम में फरोख्त करेंगे? क्या मैं तैयार हूँ। अलगरज साहबी घोड़े की कीमत पे 100 दिरहम करते हैं, कब चलेगा। 800 दिरहम में घोड़ा खरीदा और रकम मालिक के हवाले कर दी। अजीज से किसी पूछा कि आज जब मालिक 300 दिरहम में राजी था, आपने 800 दिरहम में क्यों कर अपना नुकसान किया? आपने इरशाद फरमाया, बात ये घोड़े के मालिक को इसकी कीमत का सही अंदाज न था। मैंने खैरख्वाही करते हुए उसको पूरी कीमत अदा, क्योंकि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया था कि हमेशा हर मुसलमान की खैरख्वाही करूँगा। मैंने इस वादे को पूरा किया। ये हमारे असलाफ। अल्लाह, तो ये चीज़ आजकल हमारे अंदर खैरख्वाही का जज्बा ही नहीं, हम ही है, खैरख्वाही है। इसी को आपने अद्दीन नसीहा, दीन खैरख्वाही का नाम है। कोई काम हो तो हिकमत अमली से बात करो। इसीलिए उलमा से पूछना चाहिए, मसला पूछो उलमा से। मेरे शेख ने नसीहत की थी कि मसला पूछना मौलवी से पूछना, आलिम से नहीं। मसला पूछे मुफ्ती से, तो इसका माहिर है। खुद बहुत बड़े मुफ्ती थे हज़रत नवर रहमान खदूर का, हमेशा रुजू थे मुफ्ती से। शेख से मैं कहते खाती सब जेद, कोई बात पे जाती, मुफ्ती जी मसला बताइए, खुद नहीं बताया। ये थे हमारे काबिल। आज हमारी सतही इल्म है, जानते कुछ भी नहीं। हमें तो मुफ्ती हूँ, मैं मुफ्त वाले मुफ्ती हो गया। सनद इल्म सनद, मैं मुफ्ती हूँ। अरे हमारे अमल होता था। तो एक तो ये कि आज जाहिर है कि 15 शाबान है, मस्जिद करीब आ गया। अभी तैयारी करो अल्लाह और महरूम न कीजिए, क्योंकि नबी ने दुआ मांगी है कि रजब और शाह बरकत दीजिए, पहुँचे रमज़ान को।
नबी की दुआ है, उनको अभी तैयारी करें। आपने मौका इनायत फरमा के आज रोज़ा रख लिया, आपका फजल करम है, अल्लाह महरूम न कीजिए। हर ताअत के बाद ये दुआ करे, अल्लाह आपने तौफीक दी लेकिन वही महरूम न कीजिएगा। कोई मुश्किल हर ताअत के बाद तौफीक तो उन्होंने दी, हमारा कोई कमाल नहीं, कोई वजह नहीं। इसीलिए कौम पे अदाब क्यों आ रहा है, अपनी मनमानी करते, इंतखाब गलत किया, नफसानी इंतखाब है, शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं, नाकाम रहो, कामयाब कभी नहीं हुई। दीन में भी ज़रूरी है, पहले मालूम करो इसको, नहीं जानने वाले पूछो उसको, तब बात करो। आज लफाजी आम हो रही है, बयानबाजी आम हो रही है, क्यों तस्कीर नफ्स नहीं किया, एक एक लफ्ज़ पे गिरफ्त हो रहेगी। तो जहाँ तक हो सके अपने आप को गुनाहों से बचाओ, ताक़त पे लगवा। ये हो कि अल्लाह नौन शरीफ के महीना आ रहा है, मुझे महरूम न कीजिएगा, अभी से दुआ शुरू कर दो। और दुआ भी करो, ये भी इंशाअल्लाह मैं रोज़ा रखूँ। इस तरीके से दुआ की पाबंदी करो, तिलावत का एहतमाम करो, नमाज की पाबंदी करो, गुनाहों से बचो, वली कामिल बन जाओ। आसान नुस्खा वली बनने का दो ही जो है, ताक़त पे लगो, गुनाह से बचो। और ये वली कामिल बनने के लिए ज़रूरी है कि किसी शेख से वाबस्ता हो जाओ। आज खुद कर ही नहीं सकता, कितना माहिर डॉक्टर मैं तबीब हूँ, कितनी महारत हो, लेकिन इलाज कर ही नहीं सकते। काबिल सर्जन है, अपना अपना कर ही नहीं सकता, जाता सब कुछ है, दूसरे मोहताज है। ऐसे इल्म के बारे में भी है, सनत ले ली मैंने दारुल से, वहाँ से, लेकिन अमल नहीं है। इसी ज़्यादा पड़े फिर अल्लाह वाले की सोबत जाओगे, उसकी खिदमत जाओगे, कामयाब हो जाओगे। अब दुआ को अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। सल्लल्लाहु तआला अल्लाह ताला मक़ासिद पूरे फरमा के अता फरमाए। चला शुरू